Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Preparation of Final Accounts, chapter 10 for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us have a problem. Page number 334, question number 8. Prepare final accounts from the following trial balance of Mamaji Traders for the year ended 31st December 2018. Here is the trial balance given. Trial balance as on 31st December 2018. The format for trial balance is debit balances amount rupees, credit balances amount rupees, and some of the items are given on debit side and credit side, provided with some adjustments. The adjustments are given as closing stock on 31st December 2018 2500, outstanding stationery 600, depreciation on buildings 10%, bad debts 500, and provision for bad and doubtful debts 5%, prepaid wages rupees 500, interest on drawings 6%. So we have to prepare final accounts. So first we'll be preparing trading and profit and loss account, then we'll be preparing balance sheet. The format for trading and profit and loss account is particulars amount rupees, particulars amount rupees, and the heading is trading and profit and loss account of Mamaji Traders for the year ended 31st December 2018. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit, and the format for balance sheet is liabilities amount rupees, assets amount rupees, and the heading is balance sheet of Mamaji Traders as on 31st December 2018. So how do we start trading account? First we'll be writing opening stock. Here the opening stock is given as opening stock on 1st January 2018 3500. So first we'll be writing opening stock on debit side as to opening stock 3500. After writing opening stock we'll be writing purchases. So here purchases is given as 12,000 and purchase returns will be given on opposite side. So credit purchases it is an expenditure, always it has debit balance, whereas purchase returns it is decrease in expenditure, so it will be having credit balance. तो credit side जो returns दिया हुआ रहता वो purchase returns रहते, तो purchases हमेशा आपको debit में मिलेंगे, purchase returns हमेशा आपको credit में मिलेंगे. So how do we record this? We'll be writing it as to purchases 12,000 minus returns 800. तो यहाँ पे कैसा बताएंगे आप? टू परचेजेस 12,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, लेस रिटर्न्स मतलब आप जो 12,000 का सामान खरीद रहे उसमें से 800 का सामान वापस कर रहे, तो नेट परचेजेस कितने होते हैं? 11,200. सब्ट्रैक्टिंग 800 फ्रॉम 12,000 विल बी हैविंग वैल्यू ऑफ 11,200. नेक्स्ट विल बी राइटिंग सेल्स. अपोजिट साइड क्या लिखेंगे हम? सेल्स लिखेंगे. सेल्स इट इज एन इनकम, इट हैज क्रेडिट बैलेंस, इट इज गिवन एज 18,000. तो जैसा परचेजेस डेबिट में थे इसके रिटर्न्स क्रेडिट में मिले, उसी तरह सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहता और इसके जो रिटर्न्स रहेंगे वो अपोजिट साइड डेबिट में मिलेंगे. हियर इट इज गिवन एज 500. सो हाउ डू वी रिकॉर्ड दिस? बाय सेल्स 18,000 माइनस रिटर्न्स 500. तो इस तरफ लिखेंगे आप बाय सेल्स 18,000 लेस रिटर्न्स 500. सो सब्ट्रैक्टिंग 500 फ्रॉम 18,000 वी आर लेफ्ट आउट विथ 17,500. नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे आप? अपोजिट ओपनिंग स्टॉक का अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट एज closing stock on 31st December 2018 2500. So here it will be recorded as by closing stock 2500. So closing stock which is given in adjustment will be recorded twice. Once it is recorded on credit side of trading account, next it will be recorded on asset side of the balance sheet. तो balance sheet के assets में बताएंगे आप closing stock 2500. फिर opening stock, purchases, sales, closing stock लिखने के बाद आप trading account में जो manufacturing expenses रहेंगे वो लिखेंगे. एंड इफ वेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट विल बी राइटिंग वेजेस. तो यहाँ पे वेजेस कितना दिया हुआ है? 3,000 दिया हुआ है. इस पे एडजस्टमेंट है, देखिए प्रीपेड वेजेस 500 बोल के है एडजस्टमेंट. तो फर्स्ट वेजेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पे बताएंगे आप टू वेजेस अकाउंट 3,000 रुपीज. अब इसमें से जो प्रीपेड है इसको क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्रीपेड का मतलब क्या? वक्त से पहले पे करना. तो टोटल वेजेस जो पे कर रहे हैं आप 3,000 पे कर रहे, इसमें से 500 प्रीपेड है, तो ये साल के वेजेस कितना पे करें आप? 2,500 पे करें. तो ये जो एडजस्टमेंट है ये दो बार बताएंगे आप. एक वेजेस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे, दूसरी बार प्रीपेड वेजेस का मतलब आप वक्त से पहले पे कर दे रहे, सो इट विल बी एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रीपेड वेजेस विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. प्रीपेड वेजेस 500 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर वेजेस we have carriage inwards 700. So carriage inwards will be recorded on debit side of trading account. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड पे बता रहे हैं आप टू कैरेज इनवर्ड्स अमाउंट इज 700 रुपीज. अगर कैरेज आउटवर्ड रहता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे. कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. इट इज शोन एज टू कैरेज इनवर्ड 700 रुपीज. नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन
डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो नाम ये क्वेश्चन में पूछे थे वो पूरे लिख दिए हम। बाकी के जो चीज़ें हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे या तो असेट्स या लायबिलिटीज में आएंगे। तो as we have completed trading account, first we'll be doing the balancing for trading account. So how do we balance trading account? First we'll be doing the total on debit side of trading account. Next we'll be doing the total on credit side of trading account. तो यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल देखिए 11,000 प्लस 3,000 14,000, 14,000 प्लस 2,000 16,000, 16,000 प्लस 1,000 17,000, 17,000 प्लस 700 17,700 प्लस 200 17,900. So the total on debit side of trading account is 17,900. Whereas the total on credit side of trading account is 17 plus 2 19, 19 plus 1 20. तो 17,900 और 20,000 दोनों में ज़्यादा कौन सा है? 20,000. So we'll be writing the total 20,000 on both the sides. Now we'll be subtracting 17,900 from 20,000. First subtract 17,000 from 20,000, will be left out with 3,000. Then subtract 900 from 3,000, will be left out with 2,100, which will be called as to gross profit, which is recorded here as to gross profit carried down, and in brackets we'll be writing it as transferred to profit and loss account. अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग में ये अपोजिट साइड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट इज बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,100. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनाएंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो डेबिट में लिखेंगे और इसके जो इनकम्स रहेंगे वो क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, रेवेन्यू इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो जैसा ट्रेडिंग में हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक के बाद वेजेस लिखे, वैसा फैक्ट्री में सैलरीज पहले लिखेंगे। सो हियर सैलरीज आर गिवन एज 2,300, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू सैलरीज अकाउंट 2,300. नेक्स्ट आफ्टर सैलरीज वी हैव लीगल एक्सपेंसेस 1,200, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू लीगल एक्सपेंसेस 1,200. तो इस तरफ बताएंगे आप टू लीगल एक्सपेंसेस 1,200. नेक्स्ट वी हैव रिटर्न परचेजेस, कैश एट बैंक. कैश एट बैंक का मतलब क्या? आपके बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है, इट इज एन एसेट, सो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कैश इन हैंड का मतलब क्या? अपने पास इतने पैसे है, इवन कैश इन हैंड इज एन एसेट, इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट. तो कैश इन हैंड 1,000 रुपीज, कैश एट बैंक 2,000 रुपीज, दीज विल बी शोन इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड 1,000 रुपीज, कैश एट बैंक 2,000 रुपीज. फिर आगे देखिए, परचेजेस हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, वेजेस वी हैव रिकॉर्डेड, रिटर्न्स वी हैव रिकॉर्डेड, कैरेज इनवर्ड्स वी हैव रिकॉर्डेड, legal expenses we have recorded. Then next we have opening stock, even opening stock we have recorded. Then we have investment 7,500. investment का मतलब क्या? आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे, it is an asset, it will be shown in balance sheet asset side. Next we have trademark 7,000. So every business organization has its trademark, it will be an asset to the business organization. So investment 7,500 and trademark 7,000 is an asset, so these will be shown in balance sheet asset side. तो बैलेंस शीट के असेट्स में देखिए इन्वेस्टमेंट भी बता रहे आप, ट्रेडमार्क 7,000 लिख रहे एसेट्स में, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट 7,500 भी आप एसेट्स में बता रहे, इन्वेस्टमेंट 7,500. देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स वी हैव बैड डेट्स 1,000 रुपीज. बैड डेट्स का मतलब क्या? जिन लोगों से पैसे आना था उन लोगों के पास से पैसा नहीं आ रहा, सो द डेट विच इज नॉट रिकवरेबल इज टर्म्ड एज बैड डेट्स. अब जो पैसा वापस नहीं आएगा हम उसको बैड डेट्स बोलेंगे. सो इट इज ए लॉस, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैड डेट्स 1,000 रुपीज. बट आपको एडजस्टमेंट में एक और बैड डेट्स दिया हुआ है 500 रुपीज, 500 रुपीज को. इसका मतलब क्या? और इजाफा 500 रुपये डूब जा रहे. सो फर्स्ट दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेप्टार्स. पहले डेप्टार्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इट इज गिवन एज 12,500. डेप्टार्स किसको बोलते हैं हम? जिन लोगों से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे आना है. तो जिन लोगों से पैसे आना है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होता. डेप्टार्स 12,500 विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो असेट्स में बताएंगे आप डेप्टार्स 12,500. अब इसमें से एडजस्टमेंट का जो बैड डेट्स है, हियर वी हैव टू बैड डेट्स, वन विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस 1,000 रुपीज एंड अनदर वन विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट एज बैड डेट्स 500. तो हम ये जो ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट्स है 1,000 रुपीज, इसको हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बताएंगे टू बैड डेट्स 1,000 रुपीज. अब जो एडजस्टमेंट का जो बैड डेट्स है 500 रुपीज, फर्स्ट इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेप्टार्स. तो यहाँ पे डेप्टार्स की वैल्यू क्या है? 12,500 है. इसमें से पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बैड डेट्स 500. अब ये जो बैड डेट्स जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे, दिस विल बी शोन एज फर्दर बैड डेट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले से जो बैड डेट्स थे वो 1,000 रुपीज थे, अब नया जो बैड डेट्स है वो 500 रुपये और हो रहे. सो इट विल बी शोन एज टू बैड डेट्स 1,000 रुपीज एड फर्दर बैड डेट्स 500. तो टोटल बैड डेट्स जो बताएंगे आप 1,500 बताएंगे. बट
डेप्टार्स में से जो माइनस करेंगे वो सिर्फ एडजस्टमेंट का बैड डेट्स 500 माइनस करेंगे। अब 12,500 में से 500 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास 12,000 बचते, विल बी लेफ्ट आउट विथ 12,000, जिस पे एक और एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%, मतलब और 5% आपको डाउटफुल डेट्स के लिए मेंटेन करना है, एंड दैट 5% विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द डेप्टार्स। मतलब 12,500 जो पैसे आना था, इसमें से जो एडजस्टमेंट के बैड डेट्स 500 है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 12,000, उस पर और 5% डाउट पे है पैसे, सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 12,000 एज 12,000 into 5/100, 10% ऑफ 12,000 विल बी 1,200, इट्स 5% विल बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 600। तो अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन जो आएगा देखिए, 12,500 जो डेप्टार्स से पैसे आना था, इसमें से 500 रुपये बैड डेट्स है, तो बचे कितने 12,000। फिर इसमें से आप क्या कर रहे हैं, 5% रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं 600, सो सब्ट्रैक्टिंग 600 फ्रॉम 12,000 विल बी लेफ्ट आउट विथ 11,400। तब ये जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बताएंगे, टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दैट इज टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 600 रुपीज। नेक्स्ट, after bad debts we have salaries 2,300, this we have shown on debit side of profit and loss account. Next we have carriage outward 700, carriage inward जो था वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताएं, कैरियज आउटवर्ड जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे। सो कैरियज आउटवर्ड 700 विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन आफ्टर कैरियज आउटवर्ड्स वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, इस पे एक एडजस्टमेंट है देखिए, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। इस पे जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, इट विल बी एडेड 800 प्लस 600, देन द वैल्यू बिकम्स 1400। तो इसका क्या मतलब आता, हम प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए 800 रुपये पे कर दिए और 600 रुपये पे करना है, तो ये जो 600 रुपये और जो बाकी है, दिस विल बी ए लायबिलिटी टू द बिजनेस, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी हैव ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, द अमाउंट विच द ओनर हैज विथड्रॉन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ओनर अपने बिजनेस में से अपने जाती काम के लिए जो पैसा विथड्रॉ कर रहे, हम उसको ड्राइंग्स बोल के बोलेंगे, एंड दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल कितना दिया हुआ है 40,000। व्हाट इज कैपिटल, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द business, and capital is always a liability to the business, so first capital 40,000 will be shown on liability side of the balance sheet। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम पहले कैपिटल बताएंगे 40,000, ये कैपिटल में से हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स 2,000 माइनस करेंगे। बट यहाँ पे ड्राइंग्स पे एक एडजस्टमेंट है देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% बोल के बता रहा, तो यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है 2,000। व्हाट इज ड्राइंग्स, द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ओनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल जाती काम के लिए जो पैसा विथड्रॉ कर रहे, हम उसको ड्राइंग्स बोल के बोल रहे। तो इस बार पैसा, बिजनेस का पैसा ओनर यूज कर रहे, सो ओनर शुड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन क्या है, 6% है, सो 6% ऑफ 2,000 विल बी 2,000 इंटू 6/100, इट इज 120। यहाँ पे कैलकुलेशन है देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपीज ड्राइंग्स के है, इस पे 6% है, तो 2,000 इंटू 6/100 इट वर्क्स आउट टू बी 120। तो जैसा कैपिटल में से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज इट इज एन एडजस्टमेंट, इट विल बी शोन ट्वाइस। एक बार आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल में से जैसा ड्राइंग्स माइनस कर रहे हैं वैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कर रहे, फिर एज इट इज एन इनकम टू द बिजनेस, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर ड्राइंग्स वी हैव डेप्टार्स 12,500, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में हम लिख दिए। नेक्स्ट, हियर वी हैव डिस्काउंट 750 एंड हियर वी हैव डिस्काउंट 800, मतलब डिस्काउंट आपको डेबिट में भी दिया हुआ है, क्रेडिट में भी दिया हुआ है। तो जो डिस्काउंट डेबिट में दिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, जो डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट में टू डिस्काउंट 750 लिखेंगे आप, क्रेडिट में बाई डिस्काउंट 800 लिखेंगे। नेक्स्ट, after discount we have insurance 1,400, so insurance it is an expenditure, it will be shown on debit side of profit and loss account as to expenditure 1,400 rupees। next, after insurance we have buildings 6,000, buildings की कीमत क्या है 6,000 है, तो building it is an asset, it will be shown in balance sheet asset side। तो यहाँ पे balance sheet के assets में बताएंगे buildings 6,000। इस पे एक adjustment है देखिए, depreciate building by 10%, तो यहाँ पे आपको buildings पे 10% depreciation देना है, so 10% of 6,000 will be 600। तो उसका कैलकुलेशन आएगा 6,000 इंटू 10/100, 0000 गेट्स कैंसल्ड, 600 इंटू 1 600 डिवाइडेड बाई 1 600, या फिर आसान तरीका क्या है 10% निकालने का, जितने भी जीरोस रहते एक जीरो कम कर दीजिए। सो सब्ट्रैक्टिंग 600 फ्रॉम 6,000, द वैल्यू विच इज लेफ्ट आउट इज 5,400।
तब ये जो डिप्रिसिएशन आप असेट्स पे प्रोवाइड कर रहे, एज इट इज ए लॉस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू depreciation on building 600 rupees. Now we have completed all the items which are given as debit balances in the question. Now we'll be comparing the credit balances. Capital 40,000 हम बैलेंस शीट के liability में लिख दिए, ये रिटर्न्स 800 परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स है बोल के सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेल्स 18,000 दिस वी हैव शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डिविडेंड्स 500 इट इज एन इनकम, शेयर्स पे जो पैसा मिलता है वो डिविडेंड, बिजनेस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड्स के तौर पे जो शेयर होल्डर्स को बढ़ते वो डिविडेंड है, एंड इट इज एन इनकम, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बता रहे आप बाई डिविडेंड्स 500 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर डिविडेंड्स वी हैव डिस्काउंट 800 दिस वी हैव शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग रेंट 500. अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता तो हम रेंट को ऐड करते थे फिर लायबिलिटीज में बताते थे, बट एज इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली वंस. आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब हम किराया अभी पे करना बाकी है, सो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज. तो बैलेंस शीट में बताएंगे आप आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर आउटस्टैंडिंग रेंट वी हैव क्रेडिटार्स 5250. क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसे पे करना है. तो यहाँ पे 5250 इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Now we have completed all the items of the question given as debit balances and credit balances, and we have completed all the adjustments. Closing stock लिख दिए हम, outstanding stationery का adjustment कर दिए, depreciation on buildings कर दिए, bad debts provision for bad debts कर दिए, prepaid wages कर दिए, interest on drawings कर दिए, and also we have completed the balancing for trading account. Now we'll be doing the balancing for profit and loss account. The total on debit side of profit and loss account is 2,000 plus 1,000 3,000 plus 1,000 4,000 4,500 500 5,000 5,000 plus 1 6,000 6,000 plus 1 7,000 7,000 plus 1 8,000 8,000 plus 1 9,000 9,000 plus 700 9,700 10,400 10,450. So the total on debit side is 10,450, whereas the total on credit side is 2,000 plus 1,000 3,520. तो दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है? 10,450 ज़्यादा है. So subtracting 3,520 from 10,450. पहले क्या करिए आप? 3,520 में से सिर्फ 3,000 माइनस करिए, तो 10,000 में से 3,000 निकाल दिया आप तो 7,000 बचते. अब 450 में से 520 माइनस करना है, तो पूरे 450 माइनस हो जाते, तो 520 में से और 70 रुपीज़ बचते. सो दैट 70 रुपीज़ विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7,000. सो 7,000 माइनस 70 रुपीज़, द आंसर विल बी 6,930. तो अपने को कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 6,930. तो इस बार आपको इस तरफ पैसे कम पड़ रहे हैं, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, एंड इन ब्रैकेट्स विल बी राइटिंग इट एज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 6,930. अगर ये नेट प्रॉफिट रहता था तो हम यहाँ डेबिट में लिखते थे और वो बैलेंस शीट में कैपिटल को ऐड करते थे, बट दिस टाइम इट इज ए लॉस, हेंस इट विल बी सब्ट्रैक्टेड एज लेस नेट लॉस 6,930. तब कैपिटल की जो वैल्यू है 40,000 है, इसमें से आप ये नेट लॉस 6,930 जो प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर है वो माइनस करेंगे. ड्राइंग्स जो 2,000 ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल कामों के लिए निकाल रहे वो माइनस करेंगे, और ये जो ड्राइंग्स 2,000 है इस पे जो 120 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा ये अमाउंट माइनस करेंगे. सो द टोटल अमाउंट दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40,000 इज 6,000 प्लस 1,000 7,250 6,000 प्लस 1,000 7,000 8 9,050 रुपीज़. तो पहले क्या करेंगे आप? 40,000 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट करिए, द वैल्यू विल बी 31,000. अब वो 31,000 में से 50 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करिए, the amount which is left out is 30,950. Now adding all these items, 30,950 plus 50 it becomes 31,000. 31,000 plus 5,000 36,000. 36,000 plus 600 36,600 37,100 37,300. So the total here is 37,300. So the total on balance sheet of liability side of the balance sheet is 37,300. Now we'll be doing the balancing for asset. Assets का टोटल करिए आप. 2,000 plus 1,000 3,000 3,000 plus 7,000 10,000 10,000 plus 5,000 15,000 15,000 plus 7,000 22,000 plus 1 23 plus 10 33 33,000 plus 2 35,000 35 plus 1 36,000 36,000 36,000 plus 900 36,900 plus 400 37,300. So the total on both the sides of the balance sheet, that is liability side and asset side, is 37,300 37,300. तो समझ में क्या आया? यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट रहेगा
ये 2 बार अपीयर होंगे, 2 बार लिखेंगे हम, और जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है वो सिर्फ 1 बार लिखेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा या ग्रॉस लॉस रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो आंसर रहेगा वो या तो नेट प्रॉफिट रहेगा या फिर नेट लॉस रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा तो वो इस तरफ आएगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जब ब्रॉट डाउन करेंगे बाई में लिखेंगे। अगर ग्रॉस लॉस आ रहा तो वो क्रेडिट में आएगा, और वो जब प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन होगा वो यहाँ पे डेबिट में आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट आया तो डेबिट में आएगा, नेट लॉस आया तो क्रेडिट में आएगा। इफ इट इज ए नेट प्रॉफिट इट विल बी एडेड टू कैपिटल, एंड इफ इट इज ए नेट लॉस इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो आखिरी में जब बैलेंस शीट करेंगे आप तो दोनों तरफ लायबिलिटी साइड और असेट साइड्स का आंसर सेम आना। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.